Hello student, this is part 5th of chapter number 9 of 9 science. Today we will discuss third of motion. First and second laws of motion we already discussed, and we already discussed some applications of these laws. Now third law of motion. In first law of motion we discussed how the force change the motion and how uh, can we provide the method to determine the force in the term of momentum we discussed, or acceleration we discussed this. In third law of motion we will see the third law of motion state that when an object exert a force on another object, then the another object will also exert a force back on the first one. तो क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उसी अमाउंट में, उसी मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाएगा, लेकिन चेंज सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है. यहाँ फर्स्ट केस में फर्स्ट फोर्स की डायरेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट में थी, अभी सेकंड केस में सेकंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो दोनों कंडीशन में फोर्स इक्वल होगा. F1 इज इक्वल टू F2, फोर्स 1 इज इक्वल टू फोर्स 2. These forces act on different object and never on the same object. तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट लगा रही हैं. फर्स्ट केस में आपने देखा बॉल फोर्स एक्सर्ट करती है, और सेकंड केस में बॉल जिस ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर. इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम वी while looking at the football and trying to kick it with the greater force collide with a player of the opposite team, both feel hurt because each applied a force on the other. In other word, there is a pair of force and not just one force. The two opposite forces are known as action and reaction forces. तो आपने क्या देखा है, जब आप ट्राई करते हैं किसी बॉल को किक करने के लिए विद ग्रेटर फोर्स, तो क्या होता है, आपको भी हर्ट होता है. मीन्स जब आपने बॉल को किक करा तो बॉल पे फोर्स अप्लाइड हो जाता है, और वो उस फुटबॉल में मोशन होता है और वो मोशन में होता है, लेकिन आपके पैर भी हर्ट होते हैं, आपको भी चोट लगती है. वो बॉल ने क्या करा है, जैसे ही आपने बॉल को फोर्स दिया, किक किया, उस बॉल ने भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स दिया है, उससे आपको क्या हुआ है, हर्ट हुआ है. इसको ही बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. लेट अस कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर. आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे दो स्प्रिंग को लगाते हैं और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे, अगर आप यहाँ से इस स्प्रिंग को खींचते हैं, व्हाट यू विल सी both springs getting the same force. Means if you are applying 10 Newton force, then first spring will feel 5 Newton or second spring will feel 5 Newton of force. So means same amount of force they will feel. तो यहाँ क्या हो रहा है, देखें,
The fixed end of balance B is attached with the rigid support like a wall. When a force is applied through a free end of spring balance A, it is observed that both of spring balance show the same reading on their scale. It means that the force exerted by the spring balance A on the balance B is equal but opposite in the direction. तो क्या है यहाँ हुआ क्या है, जैसे आप फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, फर्स्ट ए बी पे फोर्स लगाता है और बी भी क्या कर रहा है, ऑपोजिट फोर्स ए पे लगाता है. तो सेम रीडिंग हमको यहाँ पे दिख रही है. This is all about this paragraph. Now, suppose you are standing at the rest an instant to start walking on the road. You must accelerate, and this required a force in the accordance with the second law of motion. Second law of motion में क्या बोला था कि the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external unbalanced force, which is the in the muscular effect you exert on the road. It is the direction of instead of move. तो ये आपको पता है, आप जब चलते हैं तो क्या करते हैं, अगर आपको किसी डायरेक्शन में चलना है तो what you will do from your feet, you will just exert the backward force to move forward. अगर आपको आगे जाना है तो आप अपने फीट से पीछे बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाते हैं. आप ट्राई करके देखें तो आप बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, तब आप फॉरवर्ड चल पाते हैं. अगर आप फॉरवर्ड फोर्स लगाएंगे देन यू विल मूव बैकवर्ड. इसका मतलब जितना फोर्स आप बैकवर्ड लगाएंगे उतनी ही स्पीड से आप फॉरवर्ड जाएंगे. रनिंग के टाइम पे आप क्या करते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो आप फॉरवर्ड भी बहुत फास्ट चल जाते हैं. तो ये है एक्शन एंड रिएक्शन. आपने बैकवर्ड जितना फोर्स लगाया सरफेस पे, सरफेस ने आपकी फीट को फॉरवर्ड उतना ही फोर्स अप्लाई करता है. It is important to notice that through the action of and reaction forces always equal in magnitude. हमने ये डिस्कस किया है कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं. मतलब जितना फोर्स आप एक्शन में लगेगा उतना ही फोर्स रिएक्शन में वापस मिलेगा. This is because each forces act on the different object that may have the different mass. When a gun is fired, is exert a force forward, a force on the bullet. The bullet exert an equal force and opposite force on the gun. This result the recoil of the gun. आपने देखा है, अगर आपके पास ऐसी गन है, आप चला रहे हैं तो क्या होगा, दिस गन विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस बुलेट. ये गन क्या करेगी, इस बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स लगाएगी, देन ओनली दिस बुलेट कैन मूव फॉरवर्ड. अब ये बुलेट जैसे ही आगे जाती है, इस पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, दिस बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स बैकवर्ड, सेम फोर्स बैकवर्ड, उतना ही फोर्स ये बुलेट भी बैकवर्ड लगाती है. तभी आपने देखा है कि बुलेट में इस गन में रिकॉयल होता है, रिकॉयल वेलोसिटी होती है. मतलब एक झटका सा लगता है पीछे बुलेट फायर करने के बाद. होप यू अंडरस्टूड.
सेम थिंग यू कैन सी, अगर एक सेलियर है वो जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बोट क्या होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है। आपने देखा होगा अगर आप बोट में बैठे हैं तो आपको जैसे ही सरफेस, बोट से सरफेस पर आना होता है तो आप जंप करते हैं, जब किनारे आ जाते हैं तो सरफेस पे जैसे आप वाटर, बोट की सरफेस से जो कि वाटर में है, और उससे आप ग्राउंड पे जंप करते हैं तो क्या होता है, बोट मूव फॉरवर्ड। इससे पता चलता है कि आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाया था, बैकवर्ड फोर्स लगाया था फॉरवर्ड चलने के लिए। बैकवर्ड फोर्स लगाया था तो ही तो बोट बैकवर्ड जाती है ना। तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल। सेम थिंग, दिस कैन बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल। जैसे आप फोर्स लगाएंगे, जैसे आप इसको यहाँ देंगे तो क्या होगा, आपने ये फोर्स यहाँ फेंका, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और इसको यहाँ फेंका, आप क्या करते हैं, बैकवर्ड जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड।